mention your name in chat box. Very good morning to everyone. Today we are going to understand. lecture to धनर कॉल करतो Yes, I am audible. Hello, Yes, I am audible. Okay. Yes. So today we are going to be study about the resonance effect. This is the resonance effect, also called as the mesomeric effect. These two are not a different. It's just a literature difference. यहाँ पे जो है सिर्फ जो ऑथर लिखते हैं या जो टेक्स्ट मतलब लिटरेचर जो डिफरेंस होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक, यानी कि मीनिंग एक ही है, सिर्फ वो लिखने के लिए कुछ लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट लिखा कुछ साल पहले और बाकी बाद में एडवांस हुआ और बाद में जैसे जैसे आगे आए उसमें तो रेजोनेंस इफेक्ट उसको कहा गया है. So this is very much important. Effect is also helpful in the study of the organic molecule, in their study of their reaction, their stability, their structure. Okay, so this is one of the another important concept for you and me also, because we are the student of chemistry. Okay, so up to the last lecture we were discussed the different concept from the basic fundamental to the inductive effect and electromagnetic effect. Okay, so inductive effect and electromagnetic effect, this is the two effect we already studied. This is very these are also important. Inductomagnetic effect, there is a polarization created in the molecule due to the different electronegativity, so this is called as the inductive effect. And this is a permanent effect, sigma covalent bonded electron shifted to other more electronegative atoms. So this is the inductive effect. The next one is there, this is the electromagnetic effect. Electromagnetic effect is the polarization created in the non-polar molecule due to the attack of incoming ligands, okay, or incoming spaces is there. Okay, so this is called as electromagnetic effect. This is the temporary effect because this effect is up to the presence of incoming spaces, and when this incoming spaces depart from the molecule and then this molecule again come to their original state in the polarity, this is non-polar in nature. Okay, after that we come to the next effect is the resonance effect. So this phenomenon is very much important when you are going to understand the conjugated system. Example, benzene. We know that benzene is very valuable molecule in organic chemistry, and we see there are so many reactions they are related to the benzene. Okay, so when you pass the first year and you go to the second year, third year, and then so on, so you will see there is so much reaction they include benzene molecule, because benzene is aromatic molecule, and this aromatic molecule, it is it received the extra attention of the chemist because of the क्या कहेंगे उसको हम कि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी की वजह से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है बेंजीन मॉलिक्यूल. तो इसमें जो है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं. तो इस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड का वहां पे डीलोकलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, डीलोकलाइजेशन. और इसमें क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एसिटेट मॉलिक्यूल है, क्या है एसिटेट मॉलिक्यूल, तो एसिटेट मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला नेगेटिव चार्ज. तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, तो ये जो है ये डीलोकलाइज हो जाएगा ये वाले सिस्टम के साथ में ऐसे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन पाई सिस्टम के साथ हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर अब कन्वर्ट होता है इस तरह से. देखो इसमें क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था ये दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये अब ये वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया ये वाले, है कि नहीं. तो ये जो है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज जो है ये डीलोकलाइज हो रहा है इस वजह से, है कि नहीं. तो ये जो इफेक्ट होता है दिस बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. ये क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से होता है.
और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट है कि नहीं। जैसे हमने देखा इन इन इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, बट कहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट? सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोमेरिक में क्या हो रहा है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। बट ये जो है इसमें हम कहेंगे कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या डबल बॉन्ड जो है, वो डबल बॉन्ड के साथ वहां का जो नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है तो वो जो है वो डिलोकलाइज होता है किसके साथ? ये डबल बॉन्ड के साथ में। तो इस तरह का इफेक्ट जो है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको कई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द फेनोमेनन इन विच टू और मोर कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न for molecular ion order to explain all its properties is known as resonance। मतलब रेजोनेंस को इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं हम इसे स्ट्रक्चर 1 कहेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, दिस इज द डबल बॉन्ड। Then we can see this is the second double bond is there, and we can see this is because of this negative charge delocalized in the system. So you will get this type of bond, and now you can see this double bond is found in between two carbon and this oxygen, this position, okay. And now you see the in the first structure, this is double bond in between to this carbon and oxygen, okay. So we can see there are two different structure you can draw, but this is this drawing only for the only one molecule, जो कि हम इस तरह से उसको डिफाइन यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, इस तरह ये वाला। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल आयन जो है इसके, तो इसमें डबल बॉन्ड है, इस यहाँ पे दिख रहा है, कुछ मॉलिक्यूल में हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका जो है एक रेजोनेंस, मतलब इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो यू विल सी देयर इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ओके। तो ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें कि हमें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इसमें तो है, बट हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर ये है, इन दोनों का मिक्सचर। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस स्ट्रक्चर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके। और हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किए हैं, so that definition is tell to us two or more covalent bond structure can write for molecule, है ना। मतलब ये जो हम उसके जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए हमने, ये वाला और ये वाला, तो ये दो स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल को हमें रिप्रेजेंट करना था, बट उसका जो अलग अलग डिलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें हम देख रहे हैं, तो ये दो स्ट्रक्चर अलग नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, बट इसको हम अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली इन दोनों का मिक्सचर जो होगा ये वाला, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दो और दो से ज्यादा कोवैलेंट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बेंजीन में, हाँ, बेंजीन मॉलिक्यूल जो है ना, इसमें हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो एक बेंजीन मॉलिक्यूल होता है ना, बेंजीन, जिसमें कि हमें 3 पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं, 3 पाई बॉन्ड, और ये जो 3 पाई बॉन्ड है इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर हुआ जिसे हम एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। बट ये एक ही स्ट्रक्चर जो है यही कंफर्म नहीं होता है ना, इसी तरह से नहीं होता है। ये जो पाई बॉन्ड है ये फिक्स नहीं होते एक जगह पे, तो ये कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहेंगे। तो किस तरह से होगा? ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ डीलोकलाइज होगा, ये वाला इसके साथ होगा, और ये वाला जो है इसके साथ होता है ना, हम सबको पता है। तो ये जो है इस तरह से इसका डीलोकलाइजेशन होने की वजह से you will see there are 3 different canonical structure can possible for the benzene। देखो अब ये बॉन्ड अगर डीलोकलाइज होता है तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, है ना। अब ये आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये दोनों भी बेंजीन ही है, ये वाला भी बेंजीन है, ये वाला भी बेंजीन है। तो हम क्या करते हैं, किसी इसको ही ड्रॉ करते हैं या इसको ड्रॉ करते हैं, बट
हमें पता है कि ये दोनों एक जैसे होने की वजह से, इसमें रेजोनेंस होने की वजह से इसको हम एक सिंपली ऐसे बेंजीन रिंग बना देते हैं, एक साइक्लोहेक्सीन, और बीच में जो है इस तरह से ऐसे रिंग डाल देते हैं, है कि नहीं। अब ये रिंग जो है, रिंग क्या इंडिकेट करता है कि ये जो पाई बॉन्ड है इसमें ये कंटिन्यूसली डीलोकलाइज हो रहे हैं। कभी इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इन दो के बीच में पाई बॉन्ड है कि नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो पूरे कार्बन जो है, दिस ऑल कार्बन हैविंग sp2 hybridization and they all having pi bond nature between to them, and that's why you can draw the circle in the benzene ring. So this is all about the resonance effect. ये जो हो रहा है सब कुछ हो रहा है इसमें resonance effect की वजह से हो रहा है। Polarity created in a molecule as a result of interaction of pi bond with the conjugated system, lone pair of electron called as resonance effect. देखो ये भी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे ये जो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इसमें डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं। तो इस वजह से इसमें पोलैरिटी जो है इसमें हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो ये जो है इसमें बेंजीन में हम काफी अच्छी तरह से समझेंगे, जो कि आगे कुछ स्लाइड में दिए है। तो यहाँ पे ये समझना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, यानी कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड ये जो होता है इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस तरह से ये जो है कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये हुआ कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन में जो है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो ये भी कॉन्जुगेशन में ही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर से नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होता है पाई सिस्टम के साथ, ये वाला पाई सिस्टम इधर चला जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है जो इस एंड पे आ जाता है। So you can see here there is a allyl carbocation is there, and with the help of that we can understand how the resonance effect is helpful in the explain the stability of ion. ठीक है, तो ये जो है ये इसको समझने के लिए इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। ओके, इसमें और दो तरह के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और एक जो होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, है कि नहीं। तो हमें एक कंसेप्ट पता है, जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ा है तो देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द पॉजिटिव आर एंड नेगेटिव आर। ओके, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ ग्रुप जो होते हैं बेंजीन रिंग को अटैच होते हैं। ओके, उसमें से कुछ जो है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, है कि नहीं, बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। हम उसे उसको हमने स्टडी किया था, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। तो बेंजीन को अगर एक्टिवेट करता है कोई मॉलिक्यूल ग्रुप वहां पे अटैच होने के बाद, तो वो जो है उस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने की वजह से दिस एक्ट एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है ना, या हेलो ग्रुप भी होता है, जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग के साथ में वहां पे हमें डीलोकलाइज होते हुए दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर बेंजीन रिंग है और यहाँ पे अगर ऐसे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इस तरह से, ठीक है ना, तो और यहाँ पे हम ये दिखाएंगे इस तरह से, ये देखो ये पाई बॉन्डिंग सिस्टम हुआ बेंजीन का, और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, दिस इज द फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल है। तो ये क्या करता है फिनॉल वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बेंजीन रिंग को दे देता है, ठीक है। अब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो ये इस बेंजीन के साथ में डीलोकलाइज होते रहते हैं ऐसे, फिर ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो हमें हर टाइम में एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका मिलता जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूरे जितने भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें इसमें मिलेंगे, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एक कंबाइन कर देते हैं और एक यूनिक एक उसका एक ही स्ट्रक्चर उसको हम ड्रॉ करते हैं, जिसे कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोक्सी ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम को दिए और एरोमेटिक सिस्टम को दे दिए, तो इस वजह से दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज नोन एज
रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जो है वो शो होता है। दिस इज कॉल्ड एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट शोज प्लस आर इफेक्ट, है ना, जिसमें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, अमाइन होता है, और अल्किल ग्रुप भी होता है जो थ्रू वाया द, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे शो करता है एक्चुअली, बट ये जो है जैसे कि हाइड्रोक्सी और अमाइन और क्लोरीन, तो ये जो है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पावर सिस्टम के साथ डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो ये हुआ प्लस आर इफेक्ट। ओके, अब सेकंड जो है कि माइनस आर इफेक्ट यानी कि नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये किसे कहेंगे। अब समझो कि एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यानी कि इलेक्ट्रॉन को खुद की इधर खींच लेने वाला ग्रुप, है ना, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक एसिड ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है ना, इस तरह से, यानी कि हम नाइट्रोबेंजीन अगर एग्जांपल लेते हैं, देयर इज अ NO2, है ना, तो ये नाइट्रो ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, बट ये नाइट्रो में क्या होता है, या नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। तो ये जो है ये नाइट्रो ग्रुप ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग से खुद की इधर खींच लेता है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खुद की इधर ले रहा है, तो इस वजह से ये जो रिंग है ये डीएक्टिवेट हो जाती है कि नहीं, तो डीएक्टिवेट की वजह से हम कहेंगे इस ग्रुप को, नाइट्रो को, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये हुआ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट हो रहा है दिस बिकॉज ऑफ माइनस आर इफेक्ट, किस वजह से हो रहा है ये, ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं रेजोनेंस, एक होता है प्लस आर और दूसरा होता है माइनस आर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, resonance effect, again we can define is here, this is the delocalization of pi electron over more than one atom in term of resonance or mesomeric effect, it is symbolized by the R or M। ठीक है, इस तरह से मतलब सिंपली हमने अभी जो देखा है डिलोकलाइजेशन, इट इज टाइप 2 टाइप में है, जैसे कि एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो कि हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, देखो क्या है यहाँ पे जो ग्रुप है, देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, थायोल ग्रुप है, अल्किल थायोल ग्रुप है, अमाइन है और अल्किल अमाइन, तो इस तरह के जो भी ग्रुप होते हैं ये अगर बेंजीन रिंग को अटैच होते हैं तो इन सभी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोक्सी में ऑक्सीजन के पास, अल्कोक्सी में ऑक्सीजन के पास, थायोल में भी सल्फर के पास, है ना, अल्किल थायोल फिर से सल्फर के पास हो गए, अमाइन में नाइट्रोजन पे हो गए, है ना, तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। ओके, और ये इस तरह के ग्रुप जब बेंजीन को अटैच होते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे बेंजीन और इसको अटैच है यहाँ पे NH2, तो ये हुआ एनेलिन, है ना, तो इसमें क्या है, यहाँ के जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के, ये डीलोकलाइज हो जाएंगे इस पाई सिस्टम के साथ में। ठीक है, तो ये पहले बॉन्ड के साथ में इसका रेजोनेंस हुआ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो क्या हो गया, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे था तो ये यहाँ पे ओपन अप हो गया, तो नेगेटिव चार्ज जो है तो ये पहले कार्बन पे, फिर एक नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया ये वाले कार्बन के पास। ठीक है, और इसका डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन में फिर से एक पाई बॉन्ड है, तो ये वाला ये जो है नेगेटिव चार्ज ये गया ये वाले कार्बन के पास। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है और हमें अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं जिसे हम कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये पहला, ये दूसरा और ये वाला तीसरा, तो ये तीन अलग अलग टाइप के हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिखते हैं, बट ये तीनों ही एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो ये वाले ग्रुप जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं पाई सिस्टम को, तो इसे कहेंगे हम प्लस आर इफेक्ट। ओके, देन अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि हमने अभी कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई सिस्टम से खुद की इधर खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला है एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इस तरह से।
अब इस तरह के ग्रुप जब बेंजीन रिंग को अटैच होते हैं तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खुद की इधर खींच लेते हैं, है कि नहीं। तो इस वजह से क्या होगा कि वो जो बेंजीन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट, अब डीएक्टिवेशन क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें हम एरोमेटिक वाले कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। बट यहाँ पे समझ लेना है कि उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट यानी कि रिएक्शन के लिए एक्टिविटी उसकी कम हो जाना, यानी कि डीएक्टिवेशन। वो ज्यादा रिएक्टिव होना यानी कि एक्टिवेशन होना, है ना, इस तरह से होता है। तो रेजोनेंस कैन आल्सो प्ले अ रोल, मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखा हमने, पैरा नाइट्रोएनालिन, ठीक है। तो हमें सिंपली ये समझना है कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है यहाँ पे, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये दोनों भी हम एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। पैरा नाइट्रो एनालिन में, यहाँ पे एक एनालिन में ये NH2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और यहाँ पे नाइट्रो जो कि इलेक्ट्रॉन को खुद की इधर लेने वाला है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किस तरह से हो रहा है। ये जो ब्लू एरो यहाँ पे आप देख रहे हो, that blue arrow indicate this electron, lone pair electron of the amine group is delocalized with the pi system, है कि नहीं। देखो यहाँ से अमाइन से गया ये बेंजीन रिंग की तरफ, ये बेंजीन वाला पाई बॉन्ड गया यहाँ, और यहाँ से ये गया नाइट्रोजन की तरफ, और नाइट्रोजन में भी डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन। तो ये जो डिलोकलाइज होके फाइनली इट्स कम टू दिस ऑक्सीजन। And you will see here, after the delocalization of this lone pair of electron, you can see there is a negative charge on this oxygen. This is the orange color is there, and you can see this is the negative charge on the oxygen. Okay. So this negative charge क्यों आए यहाँ पे, ये negative charge क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है, हम कहेंगे कि नाइट्रो ग्रुप ने इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इस अमाइन ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे दोनों इफेक्ट एक साथ ही देखने को मिलते हैं कि ये जो अमाइन है इसने क्या किया, प्लस आर इफेक्ट शो किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, और इसने जो है नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खुद की इधर खींच लिए, तो ये जो है ये शो करेगा माइनस आर इफेक्ट, है कि नहीं। तो प्लस आर और माइनस आर, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, अभी जो रेजोनेंस इफेक्ट हमने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन क्या क्या होगा, है ना, मतलब इसके बेनिफिट क्या होगा या क्या इफेक्ट होता है इसका, ये समझते हैं। तो ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, है ना, जो भी आयंस बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो है रेजोनेंस इफेक्ट ये वर्क करता है कि नहीं। अब एक्सप्लेन हम लोग करते हैं और जो मेंटेन करते हैं वो मॉलिक्यूल करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें किस तरह से होता है, देखो ये ब्यूटाडाइन का एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें जो ब्यूटाडाइन का ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हैं हम, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे यही स्ट्रक्चर, इसमें अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज हो जाता है, यहाँ पे चला जाता है, डीलोकलाइज हो गया, ये हो गया यहाँ पे ओपन अप हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ थे इन दो कार्बन के बीच में, जैसे कि हम इसे 1 2 कहेंगे, है ना, और ये 3 और 4 हो जाएगा बाद में। तो ये जो है 1 2 के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इधर 2 3 के बीच में, है ना, और 2 3 के बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया, और जो 3 4 के बीच में पाई बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन होके 4 नंबर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओपन अप हो गए। तो इस तरह से कह सकते हैं, या उल्टा भी कह सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड भी गए, तो एक ही जैसे होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 करो या यहाँ से 1 2 3 4 करो, ऑल आर इक्विवेलेंट। सो यू कैन सी हियर, due to this delocalization between to this pi bond, so you will see there at the one end of this molecule there is negative charge, and on the other end there is a negative charge. Okay, so you can see here one end is positive and one end is negative. Okay, इस तरह से, है ना, और ये जो पाई बॉन्ड है बीच में यहाँ पे आ गया। अब ये जो है इसमें इस तरह से मॉलिक्यूल हो रहा है, बट ये क्यों हो रहा है, दिस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये क्यों हो रहा है कि रेजोनेंस की वजह से ये होता है इस तरह से, और ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। जैसे कि बेंजीन रिंग अगर हम देखते हैं तो हम ऐसा कभी कह नहीं सकते कि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है ये एक जगह पे ऐसे चुपचाप खड़े हैं, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है।
ये जो मॉलिक्यूल है इसमें अगर कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो है ये कंटिन्यूसली होता ही रहता है, और ये होता है इसी वजह से इसकी जो है एनर्जी जो है बाहर निकलती रहती है, और इस वजह से इसकी एनर्जी डाउन होती रहती है। अब जो एनर्जी इस रेजोनेंस प्रोसेस में बाहर निकल रही है इसे कहते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। ओके, और ये जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ये जितनी ज्यादा होती है उतना वो मॉलिक्यूल स्टेबल फील करता है, इट बिकम टू बी मोर एंड मोर स्टेबल। ओके, तो इस तरह से है। अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल एंड आयन। देखो, अब बॉन्ड लेंथ की जब बात आती है तो इसमें भी डीलोकलाइजेशन काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट करता है। जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ब्यूटाडाइन में, ये जो है ये कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर से डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो दो टाइप की बॉन्डिंग हुई। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इतनी उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। कितनी? 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। किसके लिए? ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। और अगर डबल बॉन्ड वहां पे होता है तो वो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है नियर अबाउट 1.40 या 1.42, इतनी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। यानी कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है वहां पे उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और सिंगल बॉन्ड होता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। बट इसमें अगर हम यहाँ पे जो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल है, तो इसमें ये जो इसमें रेजोनेंस हो रहा है ये वाला, इस रेजोनेंस की वजह से अब हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54 या 1.51 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं? इतनी होनी चाहिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। बट यहाँ पे ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम यूनिट, है कि नहीं? अब बॉन्ड लेंथ जो है ये कम हो गई, इसी का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ जो है मॉलिक्यूल में ये हम देख सकते हैं। अब बेंजीन में भी इसी तरह से होता है। बेंजीन मॉलिक्यूल में यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है इन दो कार्बन के बीच में, तो ये करीबन 1.42 की 1. नियर अबाउट 36 तक इसकी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, CC डबल बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड तो आप लोगों को पता है 1.51 होती है। बट ये जो डीलोकलाइजेशन होता है इसमें डीलोकलाइजेशन की वजह से हर जगह पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे अभी हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है दो कार्बन के बीच में, बट ये डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आता है